हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दिसंबर मंथ की डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download in the Play Store. This application is very helpful to you, that will help you in our preparation. All the PDFs, all the current affairs, all the material, all the quiz questions are provided by us on this particular application only. So if you are an government job aspirant, you must have this Carriers Cloud application. Now, once you have downloaded the application, you will move and open it. Then you have to log in with your Gmail ID. Once you have logged in, you will be shifted to this page. Now, if you have purchased our course, then with the course will be providing you daily PDF. In this daily PDF will be giving you multiple questions of the daily, as well as 20 questions quiz will be provided you on the daily basis. Then if we shift to weekly, we will be providing you with the weekly information also, such as weekly quiz of 50 questions each, then weekly PDF combining of whole week's important current affairs. Then if we are talking on monthly basis, we will be doing same on the monthly basis also, that will be providing you with a compiled PDF of the whole month's current affairs that are way important to you. This, if you are in English language student, then you will be provided with English, and you can switch language between English as well as Hindi. Then you should also know we help aspirants to prepare for banking exams also. Multiple quiz questions will be provided you, multiple quiz will be provided you on the daily basis, on monthly basis, on weekly basis, so that it will boost your confidence. Then we'll be providing you information related to various banking exams also. And apart from this, we have started an initiative that is very helpful, that providing you questions with topic wise, such as apps and web portals, important days, books and authors, obituary, national affairs, international affairs, important days, sports, defense, everything. Each topic will contain individual information of that particular month that will boost your preparation to a next level. This is very important. These topic wise PDFs are very important. This will help you very much in boosting your preparations. Alright friends, so you should also know, if you use our code Vikas10, we will help you by giving extra 10% discount. So go grab this offer, this will help you a lot. This is a very useful application for an aspirant. So I urge you to go and download and check our plans. तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आती है हमारी आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवाने सर की। इन्होंने अभी रिसेंटली इनको चेयरमैन की पोस्ट से सम्मानित किया गया है। इनको चेयरमैन की पोस्ट दी गई है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की। ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, याद रखना, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो होती है, इसमें आपके जो तीनों फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के चीफ या जनरल कहते हैं, वो इस कमेटी में होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, याद रखना। ठीक है, अगर मैं पहले सीडीएस की बात करूं तो वो कौन थे? वो थे बिपिन रावत सर। बिपिन रावत सर को 2019 में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपकी 4 स्टार रैंक होती है। ऑलराइट, बिपिन रावत सर का निधन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था, तमिलनाडु के कोन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ऑलराइट, और याद रखना, चीफ ऑफ आर्मी कौन है? वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है आपके? वो भी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर है। ऑलराइट, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर ने चेयरमैन का पोस्ट संभाली ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अतुल दिनकर राणे जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये भी रहेगी। इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की टीम से पहले भी लिंक थे, लेकिन अब इनको एक डायरेक्टर जनरल की पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, ये सीनियर DRDO के साइंटिस्ट हैं। ऑलराइट, एंड ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस या फिर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये एक जो जॉइंट वेंचर है ना, ये रशिया के साथ है, इंडिया का, याद रखना, ब्रह्मोस का। ऑलराइट, चलो
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ्को टोक्यो। ये एक फर्टिलाइजर या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इफ्को टोक्यो। इनके अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर किन को अपॉइंट किया गया है? एच.ओ. सूरी को। आई रिपीट, इफ्को वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के, ये आपकी सिर्फ इफ्को की बात करें तो ये क्या है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी जो ब्रांच है टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो है एच.ओ. सूरी सर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, एमडी के साथ साथ एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, जो इफ्को का ही ब्रांच आता है, ठीक है। चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरजिंदर सिंह की। हरजिंदर सिंह को अभी रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा अपॉइंट किया गया एज शेफ दे मिशन फॉर द बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स, जो कि बीजिंग चाइना में होंगे, 2022 में होंगे ये गेम्स। इसके लिए हरजिंदर सिंह को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा हरजिंदर सिंह को शेफ दे मिशन अपॉइंट किया गया फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। और हरजिंदर सिंह अभी क्या है? ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, हरजिंदर सिंह। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट बरो विंस द सेकंड टर्म, ठीक है। बरो ये आपके गैम्बिया इलेक्शंस जीते हैं इन्होंने, सेकंड टर्म इनका कहाँ का? प्रेसिडेंट का रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। इनका पूरा नाम देखें तो एडमा बरो। इन्होंने अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते, ठीक है। और इन्होंने अभी अराउंड 53% वोट्स अपने लिए जीते अपनी कंट्री में। कहाँ पे? गैम्बिया में। और इनको अभी सेकंड टर्म होगा, ये प्रेसिडेंशियल का सेकंड टर्म होगा, ठीक है, गैम्बिया कंट्री के। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलका उपाध्याय की। अलका उपाध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी, इसको भी मार्क करके चलना। अलका उपाध्याय जी को, ये जो कि आईएएस बैच, ये आईएएस थी एंड 1990 के बैच से बिलोंग करती हैं ऑफ मध्य प्रदेश कैडर। इनको अभी NHAI का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। NHAI क्या है? NHAI है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकी चेयरमैन कौन बनी? अलका उपाध्याय। ऑलराइट, ये किन को सक्सीड करेंगे? अभी अगर आपको याद हो, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो सुखबीर सिंह जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उन्होंने छोड़ दी थी इस पोस्ट को फॉर द चेयरपर्सन ऑफ नाई। उनके बाद गिरिधर अरमाने जी ने क्या कहा था? पोस्ट संभाला था, एडिशनल चार्ज संभाला था चेयरपर्सन ऑफ NHAI का। अब ये इनको रिप्लेस करेंगी अलका उपाध्याय फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ NHAI। नेक्स्ट हम बात करेंगे संबित पात्रा जी की। आपने इनको कई बार न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा। ये क्या है? ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और एक लीडर है, संबित पात्रा जी। इनको अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। चेयरमैन एंड नॉन पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव, आई रिपीट, चेयरमैन एंड पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है संबित पात्रा को इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। और ये भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है और एक काफ़ी बड़े लीडर भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इनकी जो अपॉइंटमेंट आई, किन के द्वारा आई? ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट रहेगी 3 साल की है ये, ठीक है, जो इनका टर्म है 3 साल का है। और इससे पहले संबित पात्रा जो थे, एक वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC के पहले ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे थे और अब ये चेयरमैन बना दिए गए हैं एंड पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ये भी आप याद रखना। हॉन्डुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया? जियोमारा कैस्ट्रो जी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये भी याद रखना। हॉन्डुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? जियोमारा कैस्ट्रो। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इतीरा डेविस की। इतीरा डेविस काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए? इतीरा डेविस, ठीक है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अभी मीटिंग हुई थी उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसमें अपॉइंटमेंट मिली इतीरा डेविस को। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिली है फॉर द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये किन को रिप्लेस करेंगे। नितिन चुग, नितिन चुग को ये रिप्लेस करेंगे। इससे पहले एमडी एंड सीईओ उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन थे? नितिन चुग। और अब कौन है? इतीरा डेविस। नेक्स्ट हम बात करेंगे संजीव मेहता जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ये भी याद रखना, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। इनको किसका प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की बात की जा रही है, एंड इनको न्यूज़ में दे दिया है कि ये अब अपॉइंट किए जाएंगे एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। संजीव मेहता की ये अपॉइंटमेंट रहेगी। ठीक है, ये किन को रिप्लेस कर देंगे? ये उदय शंकर को रिप्लेस करेंगे। ये उदय शंकर को रिप्लेस करेंगे। और उदय शंकर कौन है? ये जो अभी प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है फिकी के, वो है उदय शंकर। ये उदय शंकर को रिप्लेस करके प्रेसिडेंट बनेंगे फिक्की के। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे संजीव मेहता क्या अभी करंटली क्या पोस्ट पर है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। ऑल राइट, याद रखना। इसके साथ साथ आप 2-3 अपॉइंटमेंट और याद रखना। संजीव मेहता जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फिकी के, ये करंटली ऑल्सो सर्व्स एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। अभी ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है फिक्की के, अब इनको बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे। सेंटर ने अभी अपॉइंट किया अतुल कुमार गोयल को एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अतुल कुमार गोयल जी को अपॉइंट किया गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में देखें, एसीसी के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट हुई। ये 31 जन 2022 को, ठीक है, जो अभी करंट जो मल्लिकार्जुना राव, ये जो अभी करंट वहां पे एमडी एंड सीईओ हैं, वो रिटायर होंगे 31 जनवरी 2022 को। फिर 1 फरवरी 2022 से लेके वो 31 दिसंबर 2024 तक नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनेंगे? अतुल कुमार गोयल जी। तो जो मल्लिकार्जुना राव हैं वो 31 जनवरी को इस महीने रिटायर हो जाएंगे। फिर उनकी जगह जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे वो है अतुल कुमार गोयल जी। ये अपॉइंटमेंट एसीसी के द्वारा आएगी और ये 31 दिसंबर 2024 तक इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे पराग अग्रवाल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये याद रखना। इनको सीईओ बना दिया गया है ट्विटर का। पराग अग्रवाल क्या बन गए हैं? सीईओ। इससे पहले पराग अग्रवाल क्या थे? सीटीओ थे ये ट्विटर के। अब नए सीईओ बन गए हैं। इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? जो ट्विटर की अगर हम बात करें, ट्विटर के जो को फाउंडर और आपके सीईओ थे, वो थे कौन? जैक डॉर्सी। अब जैक डॉर्सी ने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोस्ट से, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो जैक डॉर्सी को फाउंडर थे एंड सीईओ थे। अब जो नए आपके सीईओ बने हैं ये इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल हैं। ये पहले सीटीओ थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। अब इनको सीईओ अपॉइंट कर दिया गया, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है स्वीडन की? काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये इससे पहले फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे थी स्वीडन में, और अब इनको पहली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है स्वीडन की, वो है मैग्डलेना एंडरसन। ठीक है, मैग्डलेना एंडरसन पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, कहाँ की? स्वीडन की। नेक्स्ट, गैब्रियल बोरिक, ये पहले एंड यंगेस्ट, आप इनको टाइम से याद रखना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट चिली की कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर चिली के कौन बने हैं अभी रिसेंटली, क्या नाम है उनका? वो है गैब्रियल बोरिक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे गीता गोपीनाथ की। अगर आपको याद हो इनसे रिलेटेड, इनको पहला फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ घोषित करा गया था, या इनको बनाया गया था पहला फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन बनी थी? गीता गोपीनाथ। अब इनको प्रमोट कर दिया गया है और अब इनको पहला डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है आईएमएफ के। ठीक है, आई रिपीट, गीता गोपीनाथ की बात करें तो ये पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ की बनी थी और अब इनको प्रमोट करके पहला मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बना दिया गया है आईएमएफ का। ऑलराइट, गीता गोपीनाथ को, ये इंडियन अमेरिकन है, याद रखना गीता गोपीनाथ। और इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब इनकी नई पोस्ट या पहले की पोस्ट पूछ लेंगे। पहली क्या थी? ये पहली फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ और अब इनको प्रमोट करके पहला मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ अपॉइंट कर लिया गया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। इसके अलावा अब मैं आपको 2-3 पोस्ट और बताना चाहता हूं जो आपको याद रखनी है। पहली है ओलेफ श्क्लोज। ओलेफ श्क्लोज को चांसलर अपॉइंट किया गया है जर्मनी का। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलेफ श्क्लोज। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कैथरीन रसल। कैथरीन रसल अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है यूनिसेफ की। सो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ कौन है? कैथरीन रसल। इनके बाद एक और अपॉइंटमेंट याद रखना, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ये हम काफ़ी बार क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। कार्ल नेहमर, इनको क्या अपॉइंट किया गया? चांसलर कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। और चांसलर ऑफ जर्मनी कौन है? ओलेफ श्क्लोज। ये 3 अपॉइंटमेंट अलग से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam and many others detail. Apart from this, you can see here, we are covering the whole syllabus here like data analysis on D3, then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare that will help you, or they are the expected questions they will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.